Hello students, I welcome you all in this e-class on the topic metal ligand bonding in transition metal complexes. So in the past lecture we saw the success of valence bond theory, that it has been quite successful in explaining various features of coordination chemistry, and it explains the ability of transition metals to bind many more ligands than its normal valence exhibited in common inorganic compound. तो जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है उसके कई फीचर्स को समझाने में यह काफ़ी सफल रहा. एंड एज वी नो दैट the coordination of ligands is assumed to the hybrid orbital of the metal, that we know. So Pauling was able to account for the stereochemistry which are related to hybridization. Now we know that from the valence bond point of view, octahedral structure has been ascribed to D2sp3 hybridization, and square planar to dsp2, and sp3 and tetrahedral geometry to sp3 hybridization. So various types of stereochemistry could be interpreted with the help of this valence bond theory. ठीक है ना. और जो है diamagnetic and paramagnetic behavior of coordination compound जो कि number of unpaired electrons related है. These characteristics also can be successfully explained with the help of this theory. Today, now we come to the limitation of this theory. So though it has been very convenient to explain the bonding in coordination compound, it has some limitations also. So the first drawback is it has been not successful in explaining the spectral behavior of coordination compounds. ठीक है ना. तो this is a serious deficiency as color is the characteristic property of transition metal compounds. ठीक है ना. तो transition metal compound का एक जो विशिष्ट characteristic है ना, color, कि ज़्यादातर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं कलर्ड होते हैं. अब ये क्यों कलर्ड होते हैं, तो वह यह जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वह एक्सप्लेन नहीं कर पाया. ठीक है ना. तो the importance of spectroscopy in the utility of substances can be realized from the fact that spectroscopic features of a compound are closely related with its molecular structure and bonding, which in turn helps in understanding how the compound will behave. So the reason for this shortcoming is that valence bond theory, it lays focus on the mechanism of bond formation, that how can a metal ion form bonds with several atoms, several ligands, and the directional characteristics of the bond. So it lays overemphasis on the atomic orbital of the central metal ion available for bond formation. ठीक है ना. तो सेंट्रल मेटल आयन के द्वारा उपलब्ध बॉन्डिंग के लिए उपलब्ध कराए गए एटॉमिक ऑर्बिटल्स पर ये फोकस करता है, एंड इट हैज़ ऑलमोस्ट कम्प्लीटली फॉरगॉटन द अदर एम्प्टी एनर्जी लेवल्स. और आपको पता है कि एज एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ रेडिएशंस बाय इलेक्ट्रॉन which is related to the spectrum of a compound and reflected in it, it is closely related with the availability of the suitable vacant energy levels. Okay, and their separation जो है it depends upon the this characteristic property of metal और ligands. तो यह जो है एक इसका बहुत बड़ा drawback रहा. Now we come to the second limitation, that magnetic properties and geometry. Magnetic properties जो हैं and geometry of the complexes, they are simultaneously explained by the valence bond theory. ठीक है ना. तो actually speaking, the theoretical conclusion of the geometry is an outcome of the explanation of magnetic properties. आपको पता है कि आपने जो है कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट कर लिया, और इसकी सहायता से theoretically आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर लेते हैं. So the experimentally determined molecular formula gives the coordination number of the metal. तो उसकी सहायता से आप आसानी से
जो है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन को डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नाउ दैट द हाइब्रिडाइजेशन which has been proposed not only corresponds to the coordination number but also predicts the required number of unpaired electrons, ठीक है ना। तो when we study tetracyano complexes of nickel, tetracyano and tetrachloro, the complexes of these complexes of nickel 2, they are having electronic configuration 3d8, ठीक है ना। तो the measurement of the magnetic moment of the complexes reveals that that's जो साइनो कॉम्प्लेक्स है that is diamagnetic, whereas the जो क्लोरो कॉम्प्लेक्स है निकल 2 का वो है पैरामैग्नेटिक corresponding to the presence of unpaired electron। तो thus we see, देखिए स्क्रीन पे देखिए, these results जो हैं they can be achieved by assuming nickel 2 to be dsp2 hybridized in tetracyano complex and sp3 hybridized in tetra nickel complex as it has been shown here on the screen। तो this gives square planar geometry for the cyano complex and tetrahedral for the chloro complex। आप स्क्रीन पे देखिए। So, thus we see that experimental results can be interpreted with the help of VBT, but it is difficult to draw conclusion। कैसे कि XRD studies of some paramagnetic nickel 2 complexes, they have shown planar geometry for them, but VBT theory जो है it predicts tetrahedral geometry for all the paramagnetic nickel 2 complexes। तो यह थ्योरी जो है वह मैग्नेटिक बिहेवियर के दूसरे एस्पेक्ट्स को कवर नहीं करती है, प्लस इट डज नॉट एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट विद टेम्परेचर। तो यह एक इसकी बड़ी लिमिटेशन रही। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट लिमिटेशन, दैट इज टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। VBT जो है इट ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन व्हाई इन सम केसेस inner orbitals and why in some complexes outer orbital ND are involved in hybridization, even if the ion is having same oxidation number and same coordination number present at the center of the different complexes। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम आयरन का, आयरन 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं यहाँ पे, हेक्साको कॉम्प्लेक्स है एंड हेक्सासाइनो कॉम्प्लेक्स है। सो दीज कॉम्प्लेक्सेस ऑफ आयरन 2 दे आर हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दोनों में, एंड द मैग्नेटिक मूवमेंट corresponds to the presence of 4 unpaired electron in the aqua complex, जबकि cyano complex is found to be diamagnetic। तो in order to account for this observed magnetism, it is proposed by VBT that along with 4s and 4p orbital, two 4d orbitals are involved in hybridization in aqua complex, but 3d orbitals inner in साइनो कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन 2। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, तो एक्वा कॉम्प्लेक्स में जो है sp3d2 हाइब्रिडेशन में आउटर d2 ऑर्बिटल्स, आउटर 2d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, जबकि साइनो कॉम्प्लेक्स में इनर 2d ऑर्बिटल्स जो हैं वह इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यह जो है सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन इसको नहीं कर पाया। नाउ वी कम टू द next drawback, that is deformation in geometry। It is expected that the complexes involving only one type of ligand, that is the complexes of the type ml6 ml4 है ना etc should have perfect symmetrical geometry, यानी कि all the ml bond जो हैं, all bond distance हैं, they should be equal। however in some complexes this is not found so। जैसे कि हम CU कॉपर 2 का एग्जांपल लेते हैं, जिसमें 4 इक्वल लिगेंड्स इन एक्वो हेक्सा एक्वो कॉम्प्लेक्सेस, दे आर इक्विडिस्टेंस एंड मे बी assumed to be situated at the apex of a square। The other 2 ligands are farther away from these 4 ligands, giving you a distorted octahedral geometry to this complex। So वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है इट मेक्स नो प्रोविजन फॉर सच डिस्टॉर्शन इन ज्योमेट्री, कि भाई इस तरह से डिस्टॉर्ट क्यों विकृति आई ज्योमेट्री में, यह हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सहायता से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो
Now we come to the next, that is stability of copper 2 square planar complexes. देखिए कि जो कोबाल्ट 2 जिसमें कि D7 कॉन्फ़िगरेशन है, D7 है ना, और कोबाल्ट 3 D6 कॉन्फ़िगरेशन वाला, उसमें 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी होती है, ठीक है ना। तो इन सभी मेटल आयंस के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके मैग्नेटिक बिहेवियर की व्याख्या हम D2sp3 हाइब्रिडेशन मान के करते हैं। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि हाइब्रिडेशन के लिए 2 empty 3d ऑर्बिटल उपलब्ध हो सकें। अब कोबाल्ट 2 का जो विन्यास है वो क्या है, 3d7 है ना। तो इनमें से 6 इलेक्ट्रॉन तो 3d ऑर्बिटल में आ जाएंगे। स्क्रीन पे आप देखिए नेक्स्ट इसमें, ठीक है ना। तो 6 इलेक्ट्रॉन तो 3d ऑर्बिटल में आ गए, और 7वां इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी लेवल के 4d या 5s में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सक्सेस के फेवर में यह तर्क हम देते हैं कि कोबाल्ट 2 का इलेक्ट्रॉन क्योंकि न्यूक्लियस से बहुत दूर चला जाता है, तो वह बहुत कम बल से आकर्षित होता है, ठीक है ना, न्यूक्लियस के द्वारा, जिसके परिणाम स्वरूप जो कोबाल्ट 2 के जो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं वह अस्थायी होते हैं और आसानी से कोबाल्ट 3 में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी द्वारा जो है कॉपर 2 के जो टेट्रामीन कॉम्प्लेक्स है कॉपर का, उसकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री की व्याख्या के लिए कोबाल्ट 2 की ही भांति यह तर्क दिया जाता है कि DsP2 हाइब्रिडेशन के लिए एक एम्प्टी d ऑर्बिटल उपलब्ध कराने हेतु, है ना, कॉपर 2 के 3d कक्षक में से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, 4d में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर इस तर्क को हम सही माने तो फिर तो कोबाल्ट 2 कॉम्प्लेक्सेस की भांति कॉपर 2 के कॉम्प्लेक्सेस भी काफ़ी अस्थायी होनी चाहिए, आसानी से ऑक्सीडाइज हो जानी चाहिए। लेकिन जो कॉपर 2 है, कॉपर 2 के कॉम्प्लेक्सेस हैं वह पूरी तरह से स्थायी होते हैं। तो इससे संकेत मिलता है कि कॉपर के सभी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, है ना, वह समान रूप से न्यूक्लियस के जो साथ हैं वह दृढ़ता से बंधे हुए होते हैं, और ऐसा नहीं प्रतीत होता कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए कॉपर 2 का एक इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र हो जाए, प्रमोट हो जाए। तो यदि सभी इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में बने रहते हैं तो कौन सा हाइब्रिडेशन पॉसिबल है, sp3। तो उसके लिए तो फिर ज्योमेट्री क्या स्क्राइब की गई है, टेट्राहेड्रल। तो टेट्रामीन क्यूप्रिक सल्फेट जो है वो टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, जबकि इसका DsP2 हाइब्रिडेशन होता है। तो ऐसे कई जो फैक्ट्स हैं वह वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सहायता से हम समझा नहीं पाए। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट ड्रॉबैक, दैट टू मच स्ट्रेस हैज़ बीन गिवन ऑन द मेटल ऑर्बिटल, ठीक है। तो आपको पता है ही कि जो सभी जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वह 2 कंपोनेंट से मिलके बने हुए होते हैं, है ना। कॉम्प्लेक्सेस आर मेड अप ऑफ 2 इक्वली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, एक तो मेटल आयन लुईस एसिड एंड लिगेंड्स लुईस बेसिस। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के दौरान ओनली द फैक्टर्स पर्टेनिंग टू मेटल आयन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है, अवेलेबिलिटी ऑफ मेटेलिक ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर हाइब्रिडेशन को ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है उन पे, दे आर मतलब, एंड ऑल द लिगेंड्स इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर दे आर टेकन एज इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइडर्स ओनली, कि लिगेंड का काम जो है केवल इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल करवाना है। नाउ तो study of complexes reveals that the ligands having vacant orbital suitable for pi bonding, एग्जाम्पल जैसे कि आपका कार्बोनिल है, नाइट्रोसिल है, वेरियस लिगेंड्स फॉस्फीन्स हैं, दे फॉर्म इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। तो डिस्टिंक्शन अमंग द लिगेंड्स ऑन दिस और द अदर बेसिस इज नॉट मेड इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इस आधार पे जो है या किसी और बेसिस पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा लिगेंडों के मध्य किसी भी प्रकार का हम डिस्टिंक्शन नहीं कर पाए, जो कि उचित नहीं लगता, ठीक है ना। तो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट ड्रॉबैक,
that is thermodynamic and kinetic aspects. Valence bond theory does not shed light on the manner the metal ligand bond strength would be affected when we proceed from left to right in a period. लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियाई कम होता जाता है, तो किस तरह से मेटल लिगेंड बॉन्ड स्ट्रेंथ प्रभावित होगा, इस पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोई प्रभाव नहीं डालती है. It is found that the heat of hybridization of the dipositive metal ion in the first transition series does not change regularly. So ये तो है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इट हैज met with partial success in explaining the kinetic stability of the complexes, and the explanation offered to account for the lability of the outer orbital complexes is that involvement of higher energy d orbital makes the metal ligand bond ionic, causing the bond to dissociate readily. However, it is not supported by the experimental evidences. तो यह जो है ये कुछ हमने लिमिटेशंस जो हैं वह कंसीडर किए. देखिए, आपको पता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन से संबंधित कौन सा फैक्टर है, काइनेटिक स्टेबिलिटी का फैक्टर है. तो जो काइनेटिक जो भी कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो जो काइनेटिकली जो है स्टेबल होते हैं, है ना, वो बहुत स्लोली रिएक्ट करते हैं और उनको क्या कहते हैं, इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस. जबकि जो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस कहलाते हैं. तो सभी आउटर ऑर्बिटल जो कॉम्प्लेक्सेस हैं और D0, D1 एंड D2 विन्यास वाले, जिनका कॉन्फ़िगरेशन D0, D1 एंड D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वह उन मेटल आयंस के कॉम्प्लेक्सेस जो हैं ज़्यादातर लेबाइल होते हैं, और D3, D4, D5, D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले मेटल आयन के कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वह, जो कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, वह इनर्ट होते हैं. तो जो है कि देखिए, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले मेटल आयन के कॉम्प्लेक्सेस के बिहेवियर को जो है टॉबे ने जो है पीबीटी की सहायता से समझाने का प्रयास किया. उनका ये कहना था कि D0, D1 एंड D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मेटल आयन है वह कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के पश्चात कम से कम एक अनहाइब्रिडाइज्ड d ऑर्बिटल खाली रहने के कारण जो रिएक्टेंट्स होते हैं आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देते हैं और तेज़ी से रिएक्ट करने लग जाते हैं, यानी कि उनकी प्रवृत्ति जो है लेबाइल होती है. जबकि जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 या उससे अधिक होती है तो जो रिक्त असंकरित कक्षक हैं वह उपलब्ध नहीं हो पाते, उस वजह से जो कॉम्प्लेक्स है वह इनर्ट पाया जाता है. तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस की जो काइनेटिक स्टेबिलिटी है उनको समझाने में टॉबे द्वारा दिया गया एक्सप्लेनेशन सफल रहा, लेकिन फिर भी कई एक्सेप्शंस जो हैं देखने को मिलते हैं. तो इस तरह से जो है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस को भी हम इस सिद्धांत की सहायता से नहीं समझा पाए. सो these have been some limitation of this valence bond theory which led to the rise of crystal field theory. So that will be taken in the next lecture. See you there. Goodbye.